Hello everyone. In previous video we have discussed about the basic introduction to the product of electrolysis. In this video I am going to explain this topic in detail. In the previous video we have taken a general example of AB electrolyte, but what I have discussed in that video is that product of electrolysis are usually or generally different from what we are expecting. What we are thinking, we are getting the exactly different product. Why so? You are taking an electrolyte. This electrolyte may be in the molten form and may be in the aqueous form. If your electrolyte is in the molten form, then there is a no issue. Keeping in mind your electrodes may be inert. Your electrode must be inert. And if you are taking electrolyte in the aqueous form, product obtained are usually different from what we are thinking, means products are beyond our expectation. Why so? In the aqueous form, water also dissociates. In aqueous form, water is present now. If water is present over there, water will dissociate and water will dissociate into H positive and OH negative, and this H positive and OH negative will definitely interfere with the positive part of the metal, positive part and negative part of the electrolyte. Electrolyte contains a positive and negative part. You are taking a electrolytic solution. Electrolytic solution means aqueous form of electrolyte. And in the aqueous form electrolyte, there may be definite interference. If there is interference, the product obtained will be 100% different than you are expecting. We will discuss this in detail. Secondly, we have discussed there may be electrode nature. Electrode may be a inert type, electrode may be a reactive type. Reactive in electrode will do certainly do gocha. ठीक है, तो these are the certain factor. One is the most important factor that I am going to discuss today is the over potential. वो फैक्टर कौन सा है, कैसा है, क्या काम करता है, उसके बारे में अपन को आज डिस्कस करना है. तो मैं NaCl को स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा. बेसिक है सबसे, ठीक है, और इससे क्वेश्चन बड़े अच्छे पूछे जाते हैं, पर्टिकुलरली एक्वस NaCl से. तो मोल्टन NaCl का केस लेते हैं बेटा. मैंने कंटेनर दोबारा नहीं बनाने और आपको भी एग्जाम में बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है. मोल्टन NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करनी है. मोल्टन फॉर्म है, एक्वस फॉर्म नहीं है, वाटर नहीं होगा तो सिंपल केस है. क्या है बेटा? सिंपल केस है. NaCl कैसे टूटेगा? Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव टूटेगा, ठीक है. एट कैथोड पे कौन जाएगा? मैं जाऊँगा, ठीक है. कैथोड पे कौन जाएगा? कैथोड पे जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अपन को ध्यान है कैथोड क्या होता है बेटा? नेगेटिव होता है. कैथोड क्या होता है? नेगेटिव. कैथोड पे क्या होगी? रिडक्शन होगी. क्या होगी बेटा? रिडक्शन होगी. तो कैथोड पे सोडियम डिपॉजिट हो जाएगा. कैथोड पे क्या डिपॉजिट हो जाएगा? सोडियम डिपॉजिट हो जाएगा. एनोड पे कौन जाएगा? एट एनोड पे जाएगा Cl नेगेटिव. वहाँ पे क्या होगी? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन. क्या होगी बेटा? कैथोड पे क्या होगी? रिडक्शन. एनोड पे क्या होगी? ऑक्सीडेशन, ठीक है. और वो क्या बन जाएगा? Cl बन जाएगा. क्या बन जाएगा बेटा? Cl बन जाएगा. वी नो Cl डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है. तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं बेटा? हाफ Cl2. क्या लिख सकते हैं? हाफ Cl2. इवन यू कैन राइट द डिफरेंट स्टेप. Cl प्लस Cl गिव्स Cl2. दैट इज़ अप टू योर चॉइस. मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो क्या बन जाएगा? हाफ Cl2. ये तो हमें आता था. आई नो बेटा, ये तुम्हें आता था. आई नो बेटा, ये तुम्हें क्या है बेटा? आता था. तुम्हें डिस्कस क्या करना है? बेसिकली तुम्हें डिस्कस करना है बेटा एक्वस NaCl. कौन सा NaCl बेटा? एक्वस NaCl. चलो आज अपन एक्वस NaCl. तो बेटा जी अपन को डिस्कस करना है केस मोल्टन का नहीं, दैट इज़ द सिंपल केस. अपन को डिस्कस करना है केस एक्वस NaCl का. किसका बेटा? एक्वस NaCl का. अब एक्वस NaCl के केस में क्या होता है? टूटता है. क्या करता है बेटा? टूटता है. टूटता किस में है? Na पॉजिटिव में एंड Cl नेगेटिव में. Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में, ठीक है. टूट गया तो ये तैयारी करता है अपनी, ठीक है. क्यों जी? इलेक्ट्रोलिटिक सेल है. हम तो चले परदेश, तुम परदेसी हो गए, ठीक है. मतलब हम चले कैथोड पे. हम कहाँ चले बेटा? कैथोड पे. अच्छा, ठीक है. तो ये कहता है ये मैं चला एनोड पे. कहाँ चला? एनोड पे. तो अच्छा, ठीक है. ये अच्छा कौन बोल रहा था? ठीक है, ये बोल रहा था अपना भाई साहब, सबका प्यारा वाटर. कहता कहाँ जा रहे हो भाई साहब?
कहता जी हम तो जा रहे हैं कैथोड पे, और ये कहता हम जा रहे हैं एनोड पे। कहता क्यों? कहता हमारे पास आयन है, हम आयन है। कहता आयन तो मेरे पास भी है। कहता तेरे पास कहाँ से आ गए रे? कहता मैं इलेक्ट्रोलाइट। कहता तू कौन सा इलेक्ट्रोलाइट? कहता मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। कहता वीक है तो वीक रहना फिर। कहता नहीं रहूँगा, नहीं रहूँगा। तो क्या हुआ? ठीक है, ये टूट गया, H पॉजिटिव इसने क्या फर्निश कर दिया? H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव फर्निश कर दिया। अब ये कहता मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा, मैं नहीं, मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा। ठीक है, कहता मैं नहीं जाने दूंगा, मैं जाऊंगा। ठीक है, ये कहता मैं एनोड पे जाऊंगा, ये कहता मैं एनोड पे जाऊंगा। ठीक है, तो अब क्या करें? ठीक है, दोनों लड़ लिए, कौन जाएगा? दोनों लड़ लिए, कौन जाएगा? ठीक है, फिर कहते चलो SRP वैल्यू चेक करते हैं किसकी ज़्यादा है। ठीक है, जिसकी SRP वैल्यू ज़्यादा हुई वो जाएगा कैथोड पे, क्योंकि अपन ये अच्छे से जानते हैं बेटा जी, जिसकी SRP वैल्यू ज़्यादा होती है ना बेटा, उसकी रिडक्शन होती है। उसकी क्या होती है? रिडक्शन होती है। और जिसकी SRP वैल्यू कम होती है उसकी रिडक्शन नहीं होती। ठीक है, अगर दो सब्सटेंस में से एक की SRP वैल्यू ज़्यादा है उसकी रिडक्शन होगी, उसकी क्या होगी बेटा? रिडक्शन होगी। चलो ठीक है, मान गया, सोडियम मान गया, सोडियम आयन मान गया। ठीक है, सोडियम आयन मान गया तो क्या होता है सोडियम आयन के साथ, जरा देखो। ठीक है, सोडियम आयन एट कैथोड पे दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। कैथोड पे अब क्या है बेटा? कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं? दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। कौन कौन सी? कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं बेटा? कैथोड पे दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहली पॉसिबिलिटी क्या है? सोडियम आयन जाए। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? H पॉजिटिव जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है बेटा? H पॉजिटिव जाए। पहली पॉसिबिलिटी है सोडियम आयन जाए, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है बेटा? H पॉजिटिव जाए। कौन जाए? H पॉजिटिव जाए। चलो ठीक है, ठीक है, जा रहे हैं। अगर ये जाएगा तो ये बनाएगा। ठीक है, अगर ये जाएगा तो ये बनाएगा। ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ दो हैं, जाना एक नहीं है, जाना एक नहीं है। ये इसको आंख दिखा रहा है, ये भी कम नहीं है, छोटू सा गिट्ठू सा देखने में लगता है, आंख बड़ी खतरनाक दिखाता है, जितना ज़मीन के ऊपर उतना नीचे। ठीक है, कहता अच्छा आंख दिखाएगा? कहता हाँ दिखाऊंगा। ठीक है, तो कहते चलो SRP वैल्यू चेक करते हैं। इसकी SRP वैल्यू चेक करने की बारी आई। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ भाई साहब के पास गए, चेक की SRP वैल्यू, तो अपने पास आ गई -2.71 वोल्ट। कितनी आ गई? -2.71 वोल्ट। ठीक है, खुश हो रहा हो, अरे बल्ले 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 हो गई मेरी तो। ठीक है, ठीक है, हो गई तो हो गई। इसकी जब SRP वैल्यू चेक की, ठीक है, आई 0.00 वोल्ट। ये इसको हंसने लग गया, अरे भाई तेरी जीरो आई है, मेरी ज़्यादा आ गई। ओ भाई अब तेरी नेगेटिव में आई है, तेरी नेगेटिव में आई है, पॉजिटिव नहीं आई। ठीक है, वैल्यू तो मेरी ही ज़्यादा आई है, वैल्यू तो मेरी ही ज़्यादा आई है। अब देख के आप सब बता सकते हो SRP वैल्यू किसकी ज़्यादा आई है? इसकी ज़्यादा आई है। और हम जानते हैं कैथोड पे वही जाता है, कैथोड पे वही जाता है जिसकी SRP वैल्यू ज़्यादा आती है। कैथोड पे वही जाता है जिसकी SRP वैल्यू क्या आती है? ज़्यादा आती है। ये कहता है यार, रोने लग जाता है, यार जाने देना यार, कैथोड पे ऐसा क्यों कर रहा है यार, जाने देना यार। कहता ना 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 ना, मैं ही जाऊंगा, महात्मा गांधी थोड़ी हूँ। ठीक है, एक शक्ल थप्पड़ खाओ दूसरा आगे कर लो, मेरी है, मेरी SRP वैल्यू आई है। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं ना, H पॉजिटिव H2 स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं? Na पॉजिटिव Na। कहता मैं ही जाऊंगा। ठीक है, ये बेचारा रो के बैठ जाता है कि अब तो क्या ही जाए, अब तो क्या ही जाए। तो ये भाई साहब कहाँ जाते हैं? ये भाई साहब जाते हैं रिडक्शन करवाने के लिए, और इसको सोल्यूशन में छोड़ जाते हैं। ठीक है, बेचारा बैग बांध के बैठा था, चला कोई और ही गया, चला कोई और ही गया। तो अब क्या होता है? ये भाई साहब चले गए कहाँ पे बेटा? कैथोड पे। बट एक्चुअली में ये रिएक्शन अपन छोटी क्लासों में ऐसे लिख लेते हैं, हम रिएक्शन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में थोड़ा कैसे लिखते हैं? ठीक है, H पॉजिटिव आता कहाँ से है? वाटर से ही आता है ना। H पॉजिटिव आता कहाँ से है? वाटर से ही आता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को लिखने का तरीका क्या रहता है? ध्यान देना बेटा इधर। इस रिएक्शन को लिखने का तरीका इस तरह से होता है कुछ। H2, ठीक है, इसने क्या गेन किया बेटा? इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया। इसने क्या गेन किया बेटा? इलेक्ट्रॉन गेन किया। ठीक है,
तो ये बनाएगा क्या बेटा, H2 प्लस OH नेगेटिव, H2 प्लस OH नेगेटिव। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। इसने क्या गेन किया बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन किया ना, ठीक है। तो आपके पास कौन सी गैस आ गई बेटा, हाइड्रोजन गैस आ गई। कौन सी गैस आ चुकी है बेटा आपके पास, हाइड्रोजन गैस आ चुकी है। इस तरह से ये रिएक्शन होती है, इस तरह से ये रिएक्शन होती है। अब कहोगे सर रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस कर लो ना। ये लो जी, आपकी रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो ये रिएक्शन एक्चुअली कहाँ हो रही है बेटा, ये रिएक्शन हो रही है कैथोड पे। हाइड्रोजन लिबरेट हुआ कैथोड पे। हाइड्रोजन कहाँ से लिबरेट होता है बेटा, कैथोड पे बेटा, बिकॉज वाटर इज एन वीक इलेक्ट्रोलाइट। अपन इस तरह से उस रिएक्शन को मेंशन करते हैं रादर देन दिस, ठीक है। तो आपने कैथोड पे रिएक्शन इस छोटी क्लासों में ऐसे लिख लेते हैं, लेकिन आपने कैथोड पे रिएक्शन ऐसे ही लिखनी है, कैथोड पे रिएक्शन ऐसे ही लिखनी है, ठीक है। हाइड्रोजन लिबरेट होता है और पीछे OH नेगेटिव बन जाता है, सिंपल केस, ठीक है। और सोल्यूशन में क्या बच गया, सोल्यूशन में बच गया Na पॉजिटिव। सोल्यूशन में क्या बच गया, Na पॉजिटिव। सोल्यूशन इन सोल्यूशन Na पॉजिटिव रिमेन्स एज सच, नहीं हुई रिडक्शन, ठीक है। अब साइमल्टेनियसली एक और प्रोसेस भी है, दो आयन और बैठे हैं, ठीक है। एक है Cl नेगेटिव आयन और दूसरे किसके है, OH नेगेटिव आयन। उन्होंने जाना है एनोड पे। उन्होंने कहाँ जाना है, एनोड पे, ठीक है। उन्होंने कहाँ जाना है बेटा, एनोड पे। साइमल्टेनियसली Cl नेगेटिव OH नेगेटिव है, उन्होंने कहाँ जाना है, उन्होंने जाना है एनोड पे, ठीक है। वहाँ पे अब कंपटीशन, ठीक है। अब Cl नेगेटिव एट एनोड दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एनोड पे कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं बेटा, दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एनोड पे कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहली पॉसिबिलिटी क्या है, Cl नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लॉस करे और Cl में कन्वर्ट हो जाए, और Cl होता नहीं है, इसलिए हाफ Cl2। क्या बेटा, हाफ Cl2, ठीक है। अब इसको मैं दूसरी फॉर्म में लिख दूं, ठीक है, तो किसी को कोई दिक्कत, नीचे लिख देता हूँ ना। Cl नेगेटिव गिव्स हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन, क्या बेटा, प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वन एंड सेम थिंग, वन एंड सेम थिंग। अब इसका जब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल चेक किया गया, क्या चेक किया गया बेटा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल चेक किया गया, तो इसकी जो वैल्यू है बेटा, ठीक है, वो आपकी नियरली इसकी जो वैल्यू आई स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की, वो आई 1.36 वोल्ट। SRP वैल्यू आई बेटा 1.63 वोल्ट। और सेकंड केस कौन सा था बेटा, OH नेगेटिव वाला। और मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको वाटर की फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है बेटा, वो आपको वाटर की फॉर्म में लिखना है, ठीक है बेटा। तो क्या निकलेगा, ऑक्सीजन लिबरेट होगी। क्या लिबरेट होगी बेटा, ऑक्सीजन लिबरेट होगी, क्योंकि जो है अपना इसमें H पॉजिटिव H2 में कन्वर्ट नहीं होना, इसमें H पॉजिटिव। तो आप रिएक्शन को कैसे याद रखोगे बेटा, इसमें ऑक्सीजन लिबरेट होनी है। इसमें क्या लिबरेट होनी है, ऑक्सीजन लिबरेट होनी है, क्योंकि इसमें OH नेगेटिव से ऑक्सीजन बनेगी, ठीक है। OH नेगेटिव से क्या है, ऑक्सीजन बनेगी। इसमें H पॉजिटिव से क्या बना, हाइड्रोजन बना। तो H पॉजिटिव कहीं नहीं आया ना, H पॉजिटिव कहीं नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पे OH नेगेटिव यूज़ होगा। वाटर का क्या यूज़ होगा बेटा, OH नेगेटिव यूज़ होगा। वाटर का क्या यूज़ होगा, OH नेगेटिव यूज़ होगा, ठीक है। तो अपने पास ऑक्सीजन बनेगी, H पॉजिटिव बनेंगे। क्या बनेंगे, H पॉजिटिव। होना क्या है, ऑक्सीडेशन होना है। होना क्या है बेटा, ऑक्सीडेशन होना है। अपने पास क्या बनेंगे बेटा, H पॉजिटिव बनेंगे। क्या बनेंगे, H पॉजिटिव। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया, यहाँ पे 4 लगा दिया, यहाँ पे 4 लगा दिया, ठीक है। ऑक्सीजन हो गए बैलेंस, हाइड्रोजन हो गया बैलेंस, चार्ज हो गया बैलेंस। इधर 4 नेगेटिव, इधर क्या है 4 पॉजिटिव, इधर क्या है बेटा 4 पॉजिटिव। तो इसका दूसरा वर्जन क्या है बेटा, ध्यान में देना इधर, ठीक है। 2H2O इट इज़ गिविंग O2 प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। क्या बेटा 4 इलेक्ट्रॉन। तो E0 क्या आ गया, इसका होता है बेटा 1.23 वोल्ट। अब वैल्यू तो इसकी ज़्यादा है, वैल्यू तो इसकी ज़्यादा है, बट रिएक्शन कहाँ होनी है, एनोड पे। रिएक्शन कहाँ होनी है, एनोड पे। वैल्यू इसकी ज़्यादा है, रिएक्शन कहाँ होनी है बेटा, रिएक्शन होनी है एनोड पे। एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, दिस इज ऑक्सीडेशन ना, यहाँ से इसके OH नेगेटिव से, ठीक है बेटा, इसके OH नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं,
क्या निकल रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। ठीक है, हम वाटर की फॉर्म में ही इस रिएक्शन को शो करेंगे, छोटी क्लासेस में 10th तक अपन कर सकते हैं, लेकिन अब नहीं करेंगे बेटा, एक स्टैंडर्ड है ये। ठीक है, एंड आपकी बुक में भी ऐसा ही मेंशन्ड है। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए। क्या निकल गए बेटा, इलेक्ट्रॉन निकल गए, माइनस हुए हैं तो ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन के लिए SRP वैल्यू तो लो चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास ऑक्सीजन लिबरेट होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी SRP वैल्यू क्या है, लो है। हमारे पास क्या लिबरेट होनी चाहिए, हमारे पास ऑक्सीजन लिबरेट होनी चाहिए, क्योंकि SRP वैल्यू क्या है बेटा जी, क्योंकि SRP वैल्यू लो है। क्योंकि SRP वैल्यू क्या है बेटा जी, क्योंकि SRP वैल्यू लो है। क्या है बेटा जी, SRP वैल्यू लो है। SRP वैल्यू लो है तो अपनी ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीडेशन होगी। अब मैं आपको एक डिफरेंट चीज़ समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं आपको एक थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट और डिफरेंट चीज़ समझाने जा रहा हूँ, ध्यान देना। क्या मैं मानता हूँ कि आप सही हो, ये सही है, ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीडेशन होगी। आपने एक सेटअप किया है, मैं कहीं और लेके जा रहा हूँ थोड़े टाइम के लिए ना आपको। आपने एक सेटअप तैयार कर दिया, ठीक है, जिसमें आपने देखा कि जो कैथोड है वहाँ पे तो हाइड्रोजन रिलीज़ हो रहा है, वहाँ पे क्या रिलीज़ हो रहा है, हाइड्रोजन रिलीज़ हो रहा है। ऑन दी कंट्रारी जो एनोड है वहाँ पे आपको लगता है ऑक्सीजन रिलीज़ होगा, वहाँ पे आपको क्या लगता है, ऑक्सीजन रिलीज़ होगा। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? बट आप ऑब्जर्व कुछ और ही कर रहे हो, ऑब्जर्व कुछ और ही कर रहे हो। ठीक है, पहली बात है यहाँ पे हमें लग रहा है ऑक्सीजन रिलीज होगा क्योंकि एनोड पे लो SRP वैल्यू वाला जाता है। एनोड पे कौन जाता है बेटा, लो SRP वैल्यू वाला जाता है। एक्चुअली यूजुअली वी टेक द कंसनट्रेटेड NaCl एंड इन दैट केसेस व्हाट हैपन्स इज हमें ऊपर वाला प्रोसेस फिजिबल रहता है और OH नेगेटिव एज इट इज़ सोल्यूशन में पड़ा रहता है। OH नेगेटिव एज इट इज़ सोल्यूशन में क्या है बेटा, पड़ा रहता है। ऊपर वाला प्रोसेस है जो बेटा वो फिजिबल रहता है, वो क्या रहता है, फिजिबल रहता है। यानी कि होनी चाहिए ऑक्सीजन, होती लिबरेट क्या है बेटा, क्लोरीन है। टक टक टक, होनी चाहिए ऑक्सीजन, होती लिबरेट क्या है बेटा, होती लिबरेट है क्लोरीन। ऐसा क्यों होता है बेटा, मान लो आपका कोई पर्टिकुलर काम करने का मन नहीं है, ठीक है, आपके पास अवेलेबिलिटी है, यू कैन डू, बट आपका मन ही नहीं है, आपका मन ही नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करेंगे, आपके पेरेंट्स आपको फोर्स करेंगे ना, आपके पेरेंट्स कर ले। मान लो आपका खाना खाने का मन ही नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ही मन नहीं है, भूख ही नहीं है ढंग से। ठीक है, कोई हो गया, कोई ऐसी इंसिडेंस हो गया कि आपका खाना खाने का मन नहीं है। ठीक है, योर मदर इज़ द मोस्ट केयरिंग लेडी इन दिस यूनिवर्स। ठीक है, वो ठुसाएगी खाना, खा ले बेटा, बेटी खा ले, खा लोगे। सम एक्स्ट्रा पोटेंशियल इज रिक्वायर्ड फॉर दैट, आई थिंक सो, है ना, some extra potential is required for that. This reaction, electron transfer in this case is very slow. ये रिएक्शन होनी चाहिए बट काइनेटिकली, गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, काइनेटिक्स पढ़ लिया ना अपन ने, काइनेटिकली दिस रिएक्शन इज स्लो। इलेक्ट्रोड सरफेस पे, इलेक्ट्रोड जो ट्रांसफ़र है इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रोड के सरफेस पे, ठीक है, वहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट होता है और रिएक्शन है स्लो। रिएक्शन इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस इंटरफेयर करते हैं, जो अपन ने डिटेल में डिस्कस करने नहीं है, इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस इंटरफेयर कर जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोड के सरफेस पे रेजिस्टेंस डेवलप होता है, इलेक्ट्रोड के सरफेस पे रेजिस्टेंस डेवलप होता है। कई बार क्या होता है, ऑक्सीजन बनती है, चिपक जाती है इलेक्ट्रोड पे, बनती है, चिपक जाती है इलेक्ट्रोड पे। ठीक है, तो क्या करते हैं बेटा, अगर तो अपन बाहर से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाएं तो रिएक्शन यही होगी, नो डाउट, जो हम सोच रहे हैं, यानी कि ये वाली ऑक्सीजन निकलेगी। बट अगर अपन जनरल ऑब्जर्वेशन नोट कर रहे हैं कि फैक्ट के हिसाब से तो ये आना चाहिए ना, प्रैक्टिकली निकलता है ये।
ठीक है। तो इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं बेटा, ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन। ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन, आपकी बुक में एक ही वर्ड लिखा हुआ है बट उसका ब्रीफ सा मैं आपको बता देता हूँ। ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन की वजह से, ठीक है, ये वाली रिएक्शन पॉसिबल नहीं है एट एनोड, ठीक है। एनोड पे ये वाली रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, यही प्रोडक्ट बनेगा। एनोड पे ये वाली रिएक्शन पॉसिबल नहीं है बेटा, आपके पास यही प्रोडक्ट बनेगा, आपके पास यही प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन। व्हाट इज द ओवर पोटेंशियल? हमें ऑक्सीजन को लिबरेट, ये वाली रिएक्शन है ये स्लो है, ये रिएक्शन काइनेटिकली स्लो है, ठीक है। इस रिएक्शन को फास्ट करने के लिए हमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है। नॉर्मल जिस पे भी अपन काम कर रहे हैं, ठीक है, उस पे ये नहीं होगा, उस पे आपको जनरली क्लोरीन ही मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? ठीक है। अब ओवर पोटेंशियल का क्या मतलब है? इसका पोटेंशियल क्या है बेटा? कम है। इसका पोटेंशियल क्या है? ज़्यादा है। इसका पोटेंशियल क्या है? ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको रिएक्शन को पॉसिबल करवाने के लिए हमें एक्स्ट्रा पोटेंशियल सप्लाई करना पड़ रहा है, हमें एक्स्ट्रा पोटेंशियल क्या करना पड़े? सप्लाई करना पड़ रहा है बेटा, ठीक है। इस रिएक्शन को जो है पॉसिबल करने के लिए अपन को एक्स्ट्रा पोटेंशियल, एक्सटर्नल एनर्जी और रिक्वायर्ड है, ठीक है। इसलिए वो होता है ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन। जब नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अलावा हम एक्सटर्नल पोटेंशियल बाहर से अप्लाई कर दें, अरे भाई हो जाए यार, हो जाए यार, हो जाए यार, ठीक है, वो रहती है ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन। तो ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन की वजह से ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाती, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाती। तो अपन को ऑनवर्ड पे मिलता है Cl2। क्या मिलता है? Cl2। अब आपसे कोई ये पूछने वाला नहीं है 12th में ओवर पोटेंशियल होता क्या है, बहुत अच्छा और डिटेल्ड टॉपिक है, आपको यही पूछते हैं क्यों, तो आप लिख देते हो ड्यू टू ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है? कैथोड पे बनेगा H2, एनोड पे बनेगा Cl2, ठीक है। सोल्यूशन में क्या बचा? Na पॉजिटिव, OH नेगेटिव, और क्या बन जाएगा बेटा अपने पास? NaOH। क्या बन जाएगा? NaOH। इतना प्यारा सा और सिंपल सा टॉपिक है। थैंक यू। कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।